Good morning, students. Welcome again. Today we will continue our next chapter, chapter 5th. Before this, we had completed 4 chapter. First one is Summer of Beautiful White Horse. Second one is uh, The Address. Third one is Ranga's Marriage. And fourth one is Albert Einstein at School. Now, today we will start our 5th chapter, Mother's Day. So, this is a play. Before this, I want to tell you the characters of the play. First, I will give you some introduction about the play, and if you want to listen the summary or you want to complete the summary, what had completed in this chapter, what has happened in this chapter, you want to know, then I will give you a brief description of this chapter in this video. But if you want to listen the complete summary, then I will provide you a link in this video description box. You can listen the summary from there. Now we will start the brief introduction of the play. This play brings out the sad condition of the mothers in the most homes. A mother works from morning till night to satisfy the needs of husband and children. She cleans and sweeps. She cooks and washes. But sadly, she gets no reward or praise for her labors. Her husband and children are most thoughtless. They do not ever think that the mother is not a machine. They never realize that she too is a human being and needs rest. We work 5 or 6 days a week and claim it as a right to have a day or two off. But do we allow the same right to mothers? Don't mothers too, like all of us, have a body that can get tired and a mind that can get bored? Don't they too need some rest or recreation? Do we ever think of it? If we do not, we need to be chastised in some way. This is what this play is all about. Now, we will start line by line explanation. First of all, we see the characters of the story here. These are some major characters of the story, and first one is Mrs. Annie Pearson. George Pearson is the husband of Annie Pearson. Doris Pearson is the daughter of Annie Pearson and George Pearson. Cyril Pearson is the son of Annie Pearson and George Pearson and brother of Doris Pearson. And the next character is Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald is neighbor of Annie Pearson. Now we will start the chapter. The action take place in the living room of Pearson's house in a London suburb. Suburbs means outskirts, कि लंदन के बाहरी इलाकों में मिसेस पियर्सन का घर था। और ये जो प्ले है ये कहाँ पे जो स्टार्ट किया गया है, तो जो प्ले में जो सेटिंग दिखाई गई है, जो जगह दिखाई गई है, वो कौन सी है? मिसेस पियर्सन के घर की है। और मिसेस पियर्सन के घर में भी कहाँ की? लिविंग रूम की। टाइम जो है वो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान का वहां पे चल रहा होता है। The living room of the Pearson family. Afternoon. It is a comfortably furnished, much lived-in room in a small suburban, semi-detached villa. अब यहाँ पे suburban का मतलब क्या होता है? तो स्मॉल टाउन हम इसको बोल सकते हैं, उपनगर जिसको हम बोल सकते हैं, सेमी डिटैच्ड का मतलब क्या होता है? सेमी डिटैच्ड का मतलब होता है जो पूरी तरह से अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो सीन जो है जैसे ही पर्दा उठता है तो सीन कब का आता है? आफ्टरनून का, दोपहर का सीन आता है। और जो वहाँ पे क्या है कि फिट्जरल्ड जो है इट इज़ कंफर्टेबली फर्निश्ड,
सारी की सारी चीज़ें जो वो है सही तरीके फर्निश्ड है, सही तरीके से जमी हुई है। मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्ब सेमी डिटेक्टेड विला, और एक सही जो है पूर्णतः अभी तैयार नहीं हुआ है लेकिन हाँ थोड़ा सही है, तो उस तरह के विला में जो कमरा है उसका सीन यहाँ पे दिखाया गया है। इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, और ज़रूरत हो तो सिर्फ क्या किया जाता है कि एक जो दरवाज़ा है सिर्फ उसको खोला जाता है, और बी यूज्ड बट it is better with two, one up left leading to the front door and the stairs and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door। और उसके बाद घर के बारे में बताया गया है। क्या चीज़ें जो है वो घर के बारे में बताई गई है कि एक दरवाज़ा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे दो दरवाजे हैं, एक जो है लेफ़्ट की तरफ जाता है, फ्रंट डोर है, एक तरफ स्टेयर्स हैं, और राइट साइड में एक वॉल है जो कि किचन की जो वॉल है, और एक बैक साइड में एक दरवाजा है। देयर कैन बी muslin covered window in left wall and possibly one in the right wall। मुस्लिन मीन्स क्या होता है? मलमल, जो सॉफ्ट जो वेलवेट का जो कपड़ा होता है, वेलवेट का कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं। इन लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल। जो फोर्थ वॉल है उस पर क्या है? फायर प्लेस है, जो आग जलाने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं। There is a settee upright and armchair down left, one down right। उसके बाद बताया जाता है सेटी मीन्स क्या होता है? जो सोफा है उसको बोलते हैं। एक साइड में राइट साइड में सोफा है, लेफ्ट साइड में एक आर्म चेयर रखी हुई है, वहीं पे थोड़ा नीचे जो है राइट साइड में जो है एक आर्म चेयर और रखी हुई है। ए स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर। और दोनों ही साइड में एक वहाँ पे छोटी सी टेबल रखी हुई है जिसके दोनों साइड में चेयर जो है वो डली हुई है। नेक्स्ट, when curtains rises it is afternoon in early autumn and the stage can be well lit। lit का मतलब होता है क्या? रोशनी। पर्दे, क्योंकि प्ले हम बात कर रहे हैं, जैसे ही प्ले ओपन होता है, जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि दोपहर का समय होता है, ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम होता है, वहाँ पे पर्याप्त रोशनी होती है। मिसेस पियर्सन जो है वो राइट साइड में बैठी हुई है, मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो लेफ्ट साइड में बैठी हुई है। आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एट द स्मॉल टेबल। बीच में टेबल है, टेबल के एक साइड में जो है राइट साइड में जो है वो मिसेस पियर्सन है, लेफ्ट साइड में मिसेस फिट्जरल्ड है। On which are two teacups and saucers and cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune। और उसके बाद क्या कि सॉसर बोला गया है क्या? तस्तरी। मीन्स वहाँ पे चाय है, चाय के साथ में कुछ जो है मीन्स स्नैक्स वहाँ पे रखे गए हैं, कुछ कार्ड्स वहाँ पे रखे हुए हैं। और मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो क्या कर रही हैं कि मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन को उनका भविष्य बताती हैं। मिसेस पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वरिड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। 40s मीन्स 40 की उम्र की। मिसेस पियर्सन जो है वो हालांकि थोड़ी सी प्लीजेंट यानी कि शांत और खुश रहने वाली औरत हैं, लेकिन हमेशा 40 की उम्र में वो लगातार चिंतित रहती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड ए स्ट्रॉन्ग सिनिस्टर्स पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे आगे जो है वो कहती है कि मिसेस जो फिट्जरल्ड है वो अच्छी भारी और मोटी जो औरत है, ताकतवर है। सिनिस्टर पर्सनैलिटी यानी कि अच्छी पर्सनैलिटी, जिसको हम कहते हैं कि आउटस्पोकन जो पर्सन होता है, तो इस तरह की पर्सनैलिटी वाली जो लेडी है। शी इज स्मोकिंग, वो स्मोक करती हैं। कौन? फिट्जरल्ड। It is very important that these two should have sharply contrasting voice। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि दोनों की ही जो आवाज़ है वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड शॉर्ट ऑफ टोन विद ए टच ऑफ स्टबर्न कॉकनी परहैप्स। अब मिसेस जो पियर्सन है वो बड़ी ही क्या सॉफ्ट वॉइस वाली औरत हैं। फ्लरिड मीन्स क्या? हमेशा टेंशन में रहने वाली, उसकी जो टोन है वो हमेशा चिंतित रहती है।
with a touch of stubborn cockney. Cockney means होता है way of speaking in London. जैसे हमारी हरियाणवी टोन आती है, ऐसे कॉकनी जो है वो क्या है, लंदन की जो टोन है उसको बोलते हैं. एंड मिसेस फिट्जरल्ड विद a deep rather Irish perhaps. मिसेस फिट्जरल्ड जो है उसकी आवाज़ बहुत ही गंभीर है, तेज आवाज़ है उसकी, और उसकी आवाज़ में आयरिश यानी कि ईरान की जो लैंग्वेज है उसकी टोन आती है. नेक्स्ट, मिसेस फिट्जरल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स. मिसेस फिट्जरल्ड कार्ड्स को कलेक्ट करती हुई कहती है, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, कुड बी ए गुड फॉर्चून. कि आज मैं मिसेस पियर्सन आपको बता देती हूँ कि आपका भविष्य जो है वो अच्छा हो सकता है, और कुड बी ए बैड वन, और बुरा भी हो सकता है. ऑल डिपेंड ऑन योर सेल्फ नाउ, ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है. मेकअप योर माइंड एंड देयर इट इज. अपना जो है इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करो, और जैसा तुम चाहो तुम्हारा भविष्य वैसा ही बन सकता है. जैसा कि कई बार क्लासेस में टीचर्स आपको बताते हैं कि जैसा तुम चाहो, अगर मेहनत करोगे तो भविष्य आपका अच्छा बनेगा, और मेहनत नहीं करोगे तो जो है आपका भविष्य अच्छा नहीं बनेगा. सेम यही बात मिसेस फिट्जरल्ड समझाती है किसको, मिसेस पियर्सन को, कि सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें अपना भविष्य कैसे बनाना है. मिसेस पियर्सन यहाँ पे कहती हैं, yes thank you Mrs. Fitzgerald, I am such obliged, I am sure. It is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है कि धन्यवाद मिसेस फिट्जरल्ड, मैं आपकी बहुत ही कृतज्ञ हूँ, और मैं बड़ी ही यानी कि खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि इतनी अच्छी भविष्यवक्ता जो है वो हमारे पड़ोस में ही रहती है. क्या आपने ये जो ज्योतिष विज्ञान है क्या ये ईस्ट कंट्रीज से की साइड से सीखा है? तो ये मिसेस फिट्जरल्ड और मिसेस पियर्सन हैं जो कि टी टेबल पे बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. नेक्स्ट, मिसेस फिट्जरल्ड, आई डिड 12 years I had of it with my old man rising to be the lieutenant quartermaster. कि हाँ, मैंने सीखा था लगभग 12 साल पहले, जब मेरे जो हस्बैंड थे वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर हुआ करते थे उस समय पे. He learned a lot and I learned a lot more. मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ से ये जो ज्योतिष है ये सीखा, और मैंने उनसे थोड़ा ज़्यादा सीख लिया. बट विल यू मेकअप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर. उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि क्या तुम अब ये पूरी तरह से ठान चुकी हो, क्या ठान चुकी हो कि भाई तुम्हें अपने परिवार को सुधारना है. ये कौन कहती है, मिसेस फिट्जरल्ड पूछती है. किससे? मिसेस पियर्सन से. पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल, कि तुम अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाओ और हमेशा के लिए जो है अपने परिवार को पा सकती हो. एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर फैमिली. अपने परिवार की तुम मिस्ट्रेस बन सकती हो और अपने घर की बॉस बन सकती हो. स्माइलिंग एपोलॉजेटिकली. एपोलॉजेटिकली मीन्स क्या होता है, एकदम से एपोलॉज करते हुए, यानी कि जो है हम कह सकते हैं क्या, क्षमा वाली जो स्माइलिंग है वो देते हुए. दैट्स easier said than done. Besides, I am so fond of them if even they are so thoughtless and selfish. उसके बाद वो कहती है कि देखिए, कहना आसान है बजाय किसके, करने के. लेकिन besides, I am so fond of them even they are so thoughtless and selfish. They do not mean to be. कि जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए थॉटलेस है. आपके बारे में कोई कुछ सोचता नहीं है आपके घर में. सभी के सभी क्या है, सेल्फिश है, और उन्हें इतना मतलबी भी नहीं होना चाहिए. किसको इतना मतलबी नहीं होना चाहिए? मिसेस पियर्सन के फैमिली को, यानी कि सिरिल को, डोरिस को और जॉर्ज पियर्सन को. मिसेस फिट्जरल्ड यहाँ पे कहती है कटिंग इन, कि मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो बीच में ही रोकते हुए कहती हैं, बट इट वुड बी बेटर फ्रॉम देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. ओके, मिसेस पियर्सन यहाँ पे जो है वो बड़ी माफ़ी मांगती हुई आगे बोलती हैं कि देखो मिसेस फिट्जरल्ड, कहना आसान है, करना नहीं. मीन्स क्या कि आप बड़े आराम से कह रही हैं कि उनको सही किया जा सकता है, लेकिन ये कहने में इजी लग रहा है, करने में नहीं.
और मैं उन सबको बहुत पसंद करती हूँ, चाहे वो भले ही मेरे लिए थॉटलेस हैं, सेल्फिश हैं, चाहे कितने ही मतलबी हैं। मिसेस प्रिचर्ड मिसेस पियर्सन की बात को बीच में काटते हुए कहती है, मे बी नॉट, शायद नहीं, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। मिसेस प्रिचर्ड कहती है कि शायद नहीं, और इट वुड बी बेटर फॉर देम, ये उनके लिए अच्छा होगा। किन के लिए अच्छा होगा? तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि यदि वो तुम्हारे साथ सही से व्यवहार करना सीख लें तो। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन ए वे। मिसेस पियर्सन कहती हैं, हाँ भाई मैं भी इसी तरीके से सोचती हूँ कि उनके लिए अच्छा होगा यदि वो क्या कर लें कि जो है सीख लें। क्या सीख लें? मिसेस पियर्सन जो है कि तुम्हारे घर के साथ में तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को तुम्हारे साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, तो यदि वो सीख लें तो ये उनके लिए अच्छा होगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं, फिट्जरल्ड कहती है, नो डाउट अबाउट इट ऑल, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या? किसमें संदेह नहीं? हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्रॉन मैन, लैड और गर्ल? लैड मीन्स है क्या? बॉय। कि कौन ज्यादा बिगड़ा हुआ है भाई, जो तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी? नोबडी, कोई नहीं। You think it does not them good when you run after them all the time. Take their orders as if you were the servant in the house. Stay at home and every night while they go out enjoying themselves. उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड उनको समझाती हुई कहती हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? कि तुम हर समय उनके ऑर्डर लेती हुई उनके पीछे पीछे घूमती रहती हो, जैसे कि तुम उनके सर्वेंट हो। हर रात तुम यहाँ पे रुकती हो, वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए, हर रात तुम यहीं पे अकेली रुकती हो। नेवर इन ऑल योर लाइफ इट इज रुइन ऑफ देम एज वेल एज यू। कि देखो तुम पूरी जिंदगी तुम क्या ऐसे ही जो है करती रहोगी, और ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर रहा है बल्कि उनकी जिंदगी को भी पूरी तरह से स्पॉइल कर रहा है, क्योंकि इस तरह के बच्चों का भविष्य कुछ भी नहीं होता। हस्बैंड, सन्स, डॉटर should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. चाहे हस्बैंड हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, हस्बैंड को उसके वाइफ की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, और जो बेटा या बेटी है उनको अपनी मदर का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से नहीं कि वो हर टाइम उनको बस ऑर्डर देते रहें और उनको धूल की तरह से जो है वो ट्रीट करें। एंड डू नॉट टेल मी यू डू नॉट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि अब मेरे सामने इस तरह से मत करना, कि अब मिसेस पियर्सन से कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि जितना मैंने कहा है तुम मुझसे उतना कहीं ज़्यादा जानती हो। मिसेस पियर्सन कहती है डब्यूअसली। डब्यूअसली मीन्स क्या होता है? डब्यूअसली मीन्स होता है क्या? दबी हुई, या हम कहते हैं क्या, इन ए डाउटफुल मैनर। मिसेस पियर्सन एक डाउटफुल मैनर में बोलती है, आई सपोज इट इज बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। वो कहती है जहाँ तक मेरा मानना है मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे इस तरह से उन लोगों से जो है इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, लेकिन मुझे अनप्लीजेंटनेस से, अशांति से मुझे नफरत है। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। और सबसे मुश्किल तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उनको सुधारना कहाँ से शुरू करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट समहाउ आई डू नॉट नो हाउ टू बिगिन। मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ कि भाई मैं मन बना चुकी हूँ उनके लिए पूरी तरह से कि उनको कैसे सुधारा जाए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, क्या समझ नहीं आता कि भाई मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। शी ग्लैंसेस एट हर वॉच और एट ए क्लॉक। उसके बाद वो घड़ी की तरफ देखती है। वॉच और ए क्लॉक, डिफरेंस क्या है दोनों में? तो वॉच होती है जो कि हम लोग कलाई पे पहनते हैं, और क्लॉक क्या होती है जो कि दीवार पे लगी हुई रहती है। वो घड़ी की तरफ, अपनी घड़ी की तरफ देखती है, दीवार घड़ी की तरफ देखती है। ओ ग्रेशियस, कि हे भगवान, लुक एट द टाइम, देखो समय क्या हो गया। नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एट एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन हरी टू गो आउट अगेन। उसके बाद मिसेस पियर्सन को इतना समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी भी टेंशन में है। वो कहती है कि हे भगवान, अभी तक कुछ भी मैंने उन लोगों के लिए तैयार नहीं किया है, वो बस सभी लोग आते ही होंगे और जल्दी से आकर उनको वापस भी जाना है। मीन्स
मिसेस पियर्सन अभी भी उन सभी के लिए इस तरह से बिहेव कर रही है मानो कि वो दोबारा बेचारे ड्यूटी पे जाने वाले हैं, जबकि वो दोबारा सभी इंजॉय करने के लिए नाइट पार्टीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।